and good afternoon everyone for the press conference of Akums Drugs and Pharmaceuticals IPO. It gives me a great pleasure to invite all of you here on behalf of Akums Group and our fellow book running lead managers. I extend my heartfelt welcome to all of you to the press conference here, and this is all an exciting journey for public listing of Akums Drugs. And maybe I'll just give you a brief introduction about Akums Group and then about the issue size as well. Through this interactive session which we will have now, we would like to highlight the journey of Akums Drugs and what it stands for and what it brings to the table to the investors. Akums Drugs and Pharmaceuticals is the largest India-focused CDMO in terms of revenue, production capacity and client served. For FY24, it had a market share of 30.2% in the Indian domestic CDMO market by value. In terms of the CDMO business, Akums has presence, apart from the CDMO business, it also has presence in formulations as well as API business. Akums differentiates itself within the industry through its unmatched scale and its strategic presence across the value chain. In light of this, we've garnered excellent response from the institutional shareholders. This is a 75% allocation to QIB issue, and we received excellent response from the institutional investors, which you will see when we announce this on Monday about the anchor investors. So I'll just give you a brief background about the issue details. This is a fresh issue of 680 crores and an offer for sale by the private equity investor Quadria and some by the promoters of around 1177 crores. So total issue size of 1857 crores. And the broader objects of the primary fundraise, which is 680 crores, is towards repayment of debt for the company and its subsidiaries, and working capital requirement and some for inorganic growth as well. Now, the price band for the issue is fixed at 676 to 679. This is a face value of 2 rupees. The main book opens on Tuesday, 30th of July and closes on 1st of August. On behalf of the company and the BRLMs, we invite highly value support and participation in this IPO. Now we will maybe request a corporate presentation of the company, and then followed by that I will request Sanjeev ji and Sanjeev ji to do the presentation. आप सभी लोग यहाँ हमारे आग्रह पे आए, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे आग्रह पर यहाँ हमारे बीच में पधारे। एकम्स, जैसे कि नाम से बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि नाम कहां से आया, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो एकम्स प्रभु के 5 नाम आशुतोष, कैलाशपति, उमेश, महेश, शिव। तो शिव शंकर के 5 नामों का पहला अल्फाबेट है एकम्स। एकम अहम, एकम ब्रह्मम, एकम ओंकारा। तो सब जगह पे कहीं ना कहीं हम एकम को प्रयोग करते हैं। वणक्कम साउथ में बोलते हैं तो भी एकम आता है। सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, तो सब जगह पे एक ऐसा शब्द है जो कि सब जगह पे प्रयोग किया जाता है ग्रीटिंग के लिए, नमस्कार करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए। और हम सब एक हैं इस बात को वापस साकार रूप देने के लिए। तो ये जर्नी शुरू होती है 2004 से, जब हमारे एल्डर ब्रदर, हमारे बड़े भ्राता श्री संजीव जी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी में, मैं इनके साथ में को मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, हम दोनों ने मिलके, और इनके मन में एक विचार था श्री संजीव जी के मन में कि भी हमें एक शानदार सा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तैयार करना है। तो हम लोग दोनों ने मिलके एक कंपनी फॉर्म की जिसका नाम रखा एकम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ये 2004 में, अप्रैल 2004 में हमने इसकी इनकॉर्पोरेशन हुआ, 19 अप्रैल 2004। सिर्फ इनकॉर्पोरेशन ही नहीं हुआ, बल्कि उसी वर्ष के अंदर हमने भूमि का अधिग्रहण किया, जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू की, प्रोडक्शन भी उसी वर्ष में शुरू की और उसी वर्ष में बिलिंग भी शुरू की। उस दिन तक हमारे पास जितना भी था, जो भी सेविंग हम उस समय तक कर पाए थे, हमने वो सारी सेविंग्स को कलेक्ट किया
एक मकान था हमारे पास लाइफ टाइम जो बना पाए थे तब तक, तो उसको भी हमने मॉर्गेज किया, उससे जो पैसा आया वो भी बिजनेस में लगाया और हरिद्वार में जगह ली सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पे कि हमको बताया गया था कि लगभग जनवरी फरवरी तक ये जमीन 2004 में तैयार हो जाएगी और आप पूरा फुल वेल डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया में आएंगे। लेकिन जब हम वहां पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए गए तो हमारे को प्लॉट तो मिल गया, लेकिन हमारे को रोड वगैरह नहीं मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, बिजली पानी नहीं मिला, टेलीफोन की रोमिंग नहीं मिली और ना ही टेलीफोन की तार मिली। लेकिन जब मन में एक विचार आ जाता है और उसको जीने का एक पैशन बन जाता है तो वो कार्य करना होता है। तो उसी पैशन के साथ, उसी विश्वास के साथ कि हमें ये कार्य करना है और हमें यहाँ पे ये फैक्ट्री लगानी है और 2004 के अंदर ही लगानी है, तो हमने अपना एक 800 मीटर का अपना रोड बनाया, एक रोड का पैच बनाया, जो कि हमको अप्रोच रोड अपने प्लॉट के लिए चाहिए थी। तो बहुत इंडस्ट्री के अंदर हम बहुत ज्यादा छोटे थे, लेकिन तब भी हमारे को लगा कि हमें ये काम करना है, मतलब करना है। टेलीफोन के लिए हमें 800 मीटर 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था टेलीफोन अटेंड करने के लिए, क्योंकि वहां पे रोमिंग भी नहीं आती थी, क्योंकि दूर दूर तक पूरा खाली इलाका था, तो हमें 1 किलोमीटर के बाद जाके टेलीफोन मिलाना पड़ता। तो एक बार मन में विचार आया कि हवा में तो सिग्नल होते होंगे, तो एक बार मैंने क्या किया, एक SMS टाइप किया, वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट में दिक्कत आती थी और उसको फोन को उछाला, और जब उछाल के कैच किया तो वो SMS चला गया और 2 SMS नहीं आ गए। तो लगा कि इसका मतलब ऊपर से अगर हम उस चीज को इस्तेमाल करें तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने एक लोहे का टावर बनवाया और उसके ऊपर चढ़ जाते थे। अब कोई सपोर्ट तो कर नहीं था। BSNL को बोला भी हमारे को तार लगा दो, उन्होंने कहा कि तार हम लगा नहीं सकते जब तक रोड नहीं बनेगी। तो इस तरह की सिचुएशन चलती रही। खैर हमने एक लोहे का टावर बनवाया, वहां पे चढ़ जाते थे, टेलीफोन पे बातचीत करते थे। तो एक काम करने का एक जो अंदाज था वो अलग प्रकार का हो गया। हमें मालूम है कि हमें करना है, हमें मालूम है हमें अपनी रोड बनानी है, अपना बोरवेल बनाना है, अपने ही जनरेटर से बिजली को प्रोड्यूस करके प्रोजेक्ट भी लगवाना है और प्रोडक्शन भी हमने अपने जनरेटर से ही चालू की, क्योंकि उस समय पे पावर कनेक्शन नहीं मिल पाया। तो उस प्रकार के पैशन के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई और इस बिजनेस की शुरुआत हुई। जर्नी चलती चली गई। समय समय पर 2004 में, 7 में, 10 में, 14 में अलग अलग समय पे अलग अलग प्लांट्स लगाए। लेकिन जो भी किया वो हृदय से किया, मन की गहराइयों से किया, सोच समझ के किया और जो फार अहेड ऑफ टाइम है उस प्रकार के विचार के साथ किया कि जो भी करेंगे कुछ ऐसा होना चाहिए जो अलग हो, यूनिक हो, जो वेल रिकॉग्नाइज किया जा सके। पहले क्लाइंट्स जो थे हमारे पास, आज भी वो सारे क्लाइंट्स आज हमारे साथ हैं और टॉप क्लाइंट्स को हम शुरू में ही अट्रैक्ट कर पाए। अच्छा टैलेंट हम लेके आ पाए, अच्छा टैलेंट लिया और उस प्रकार से ये कार्यवाही, ये जो समय है ये निकलता चला गया। मैं 5 फरवरी 2008 में भी आया था एक बार अहमदाबाद में हायरिंग करने के लिए, क्योंकि हमें लगा कि यहाँ से अच्छा टैलेंट हमें मिल जाएगा, कुछ एक लोग मिलेंगे। मेरे को वैसे ये एक पर्टिकुलर ध्यान है। तो खैर 2004 में अच्छे अच्छे टैलेंट्स को लेके आए, R&D सेटअप किया, प्रोडक्शन शुरू किया और इस प्रकार से आगे करते गए और बहुत सारे इनोवेटिव फॉर्मुलेशंस जैसे जैसे हमारे क्लाइंट्स की नीड आती रही हमने उनको डिजाइन करके डेवलप करके देते चले गए। इसमें हम हमेशा से अग्रणी रहे, प्लांट सेटअप के अंदर अग्रणी रहे। अनएम्प्लॉयमेंट की बात अगर मैं करूं तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल था वो इस प्रकार से था, शायद यही कारण था कि बहुत स्पेशल इकोनॉमिक जोन वहां पे डिक्लेयर किया गया था। इस कदर था कि वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट लोग अपनी डिग्रियां छुपा के वर्कर्स के तौर पर आना पसंद करते थे। उनको लगता था कि अपनी डिग्री दिखा देंगे तो कोई वर्कर में नहीं लेगा, तो वो बताते थे कि हम तो 10वीं 12वीं पास है, आप हमें वर्कर में रख लो। इस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट उस हिस्से में उस समय पे होता था। आज प्रभु की कृपा है कि आज हमारे साथ हरिद्वार अलोन में 12,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और वो परिवार फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। फार्मा इंडस्ट्री में जो लोगों ने कभी फ्रेशर के तौर पर ज्वाइन किया था, आज वो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर लीडर्स कहलाते हैं, अलग अलग पोजीशंस पे हैं, टॉप पोस्ट पोजीशन पे हैं। कोई लीड कर रहा है किसी शो को, कोई किसी डिपार्टमेंट को, और वेरियस फॉर्म्स पे जाके फार्मा को डिस्कस करते हैं, सिस्टम्स को डिस्कस करते हैं, क्वालिटी कल्चर को डिस्कस करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं। एक स्किल सेंटर हमने तैयार किया जहां पे कि यही थॉट के साथ कि खाली एक एकम्स की बात नहीं है, कोई भी आए जिसके मन में है कि अच्छी क्वालिटी का मेडिसिन बनानी है और मुझे कैसे चलाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो आए और फ्री ट्रेनिंग लेके चला जाए। तो इस विचार के साथ हम खाली ऐसा नहीं है ये सोचते कि हम सिर्फ अपने लिए करेंगे। 22% देखो इंडस्ट्री के अंदर 24 घंटे काम चलता है, लेकिन 22% फीमेल एम्प्लॉइज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। चाहे कहीं पे भी देखें, ग्रीनरी की बात करें तो जो बेस्ट ऑफ ग्रीनरी, एनवायरमेंट की बात करें तो 5 प्लांट हमारे जो हैं वो 0 लिक्विड डिस्चार्ज पे है कि हम कोई लिक्विड डिस्चार्ज नहीं करते।
आपके सामने मैं फाइनेंशियल्स कंपनी के बता रहा हूँ. सो ओवर द लास्ट 4 years, आपके सामने 3 years है. In the BRFP we have 4 years. The revenue of the company has grown at a 15% CAGR during this period. So if you look at for this period, we are at a 4,178 crores. So the overall EBITDA margin for our business during this period is around 12.2%. It's at the range of 11 and 12%. अब अगर हम डेट इक्विटी देखें तो कंपनी के डेट बिल्कुल नहीं है, तो लीवरेज नहीं है कंपनी. सो टोटल डेट्स ऑन द कंपनी वर 444 crores. We have cash and cash equivalent. So our net debt is around 221 crores. अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो हमारे कैपिटल से हम जनरेट करते हैं, that's at a steady state 17%. One exceptional year happened in between, जो आप अगर EBITDA भी देखेंगे तो वो आपको थोड़ा नीचे दिखेगा. That was one of the API companies that we had acquired. We had made an investment which could be एक तरीके से जो पैसा हमने उसमें से कमाया नहीं, वो 103 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते उस साल में. तो अगर आप ट्रेंड लाइन देखेंगे तो यू विल सी दैट the business has 425, 453 and 550. So that was one odd exceptional investment which we did, and that business is now sort of turned around and is stable. अगर हम अगले स्लाइड पे जाते हैं तो CDMO हमारा 78% बिजनेस करता है, 94% EBITDA देता है. So if you look at that slide, you'll see an EBITDA of 487 crores over this period on a 515 crores. तो जो CDMO का व्यापार है उससे सबसे ज्यादा EBITDA आता है. Steady state EBITDA of this business has been hovering around 14 to 15% over the period. I think you can see that on your slide. Yeah. So if we look at तो हमारे कैश फ्लोज जो हैं वो कैश फ्लोज स्ट्रॉन्ग हैं. Largely, for 2 years, हमारे cash flows were not as good because we were investing in the API business. But this year, if you look at, we have cash flows of 498 crores and a free cash flow of 168 crores, which means we sort of manage our capex through our money also. Working capital, अगर आप देखेंगे तो 932 crore के आसपास है, on a top line of 4,178 crores. This is a 4 times turnover the working capital. तो जो हमारा पैसा है वो भी हम 4 बार रोटेट कर लेते हैं मिनिमम ओवर अ पीरियड. तो दैट्स वन गुड थिंग. और फिक्स्ड एसेट टर्नओवर अगर आप देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर हमारी हाई थी, पर क्योंकि वो API बिजनेस है तो उसकी फिक्स्ड एसेट टर्न थोड़ी लो है. तो 87 crores goes to pay back the loan, right? The remaining 55 crores is for working capital. 170 odd crores is general corporate purposes, and almost 68 crores we've left for inorganic acquisition. I think historically हम लोगों ने assets खरीदे हैं CDMO business. API is one odd investment that we've made. So we constantly look at quality assets. If there is a good opportunity, we would like to look at in the CDMO business. कमी शुरू की थी. इस साल हमने नेजल स्प्रे शुरू किए. इस साल हमने कंट्रास्ट मीडिया भी बनाना शुरू किया. अभी हम अगले 2-3 महीने के अंदर बाइल एक्सप्लोरेशन भी शुरू कर रहे हैं. तो हमने पोर्टफोलियो जैसे 4 आइटम का पोर्टफोलियो है, उसके 60+ डोजेस फॉर्म में हम डोजेस फॉर्म भी इंक्रीज करना चाहते हैं. जिन डोजेस फॉर्म में अभी हम नहीं हैं उसी तरह एक्विजिशन देखेंगे. जहाँ पे हम हैं वहाँ पे हमको भी ग्रीन फील्ड और हमको बनाना आ गया है वो, तो वो हम नहीं करेंगे. फाउंडेशन होगा. नॉट CDMO में सेकंड लार्जेस्ट कौन है इंडिया में? इंडिया में कहने को बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट के नाम तो कोई नहीं. हमने वो क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म है तो उसमें आपने दिखाने की कोशिश की है. तो ये एक इसमें एक लिस्टेड कंपनी थी इनोवा कैपिटल, जो भी लास्ट ईयर लिस्टेड कुछ महीने पहले. एक साइनोकेम है, इसको TA एसोसिएट्स करके कंपनी है जो 60% ओन करती है. और तिरुपति है, इसके अंदर भी मेजोरिटी 60-50% प्लस इस प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर. ये है इनका इन्वेस्टर. लेकिन तीनों को जोड़ दें तो उनसे ज़्यादा हम रिवेन्यू करते हैं, उनसे ज़्यादा अभियान करते हैं, और उनसे कैपेसिटी वाइज तो अगले 5 साल को भी जोड़ना पड़ेगा, तो भी उनसे दुगनी कैपेसिटी पे हम वर्ल्ड के अंदर हम कस्टमर बेस पे सेकेंड हैं और 25th हैं वर्ल्ड के अंदर हम आज के रेवेन्यू के अंदर से.
जिसके अंदर की एपीआई, वैक्सीन, मतलब ऑल सेगमेंट, बायोसिमिलर्स, सब कुछ शामिल है पूरे ग्लोब में। तब हम 25 और ये यदि हम हाफ ईयरली रिजल्ट हमने पहले फाइल किया था तब हम 27 थे वर्ल्ड में। हमने 2 रैंक लास्ट 6 मंथ में अपग्रेड किया अपने आप को, और वी होप कि हम ग्लोबल सीडीएमओ फ्यूचर में क्या है। सीडीएमओ में आपका स्पेशलाइजेशन क्या है? जैसे मैंने बताया सर, 60+ डोज इंडिया की बात करते हैं क्योंकि हमारा अभी तक मेजोरिटी बिजनेस डोमेस्टिक है। हम 4000 फॉर्मेशन बनाने वाले कोई है ही नहीं इंडिया के अंदर जो 4000 बना सकता है। इंजेक्शन में स्पेशलाइजेशन है? इंजेक्शन के अंदर भी है, इंजेक्शन के हम सब कुछ करते हैं सर, लेकिन हमारा मेजोरिटी ऑफ बिजनेस जैसे आईपीएम होता है जो इंडियन फार्मा को रिफ्लेक्ट करता है, हम वैसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उसमें ओरल सॉलिड सबसे बड़ा है, तो हमारा भी ओरल सॉलिड सबसे बड़ा है। इंजेक्टेबल के अंदर मैं एक आइटम के साथ एग्जांपल देता हूँ, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन सर हमारे बनाने से पहले 14 डेज वुमेन को पेन करना था, वुमेन के लिए होता है, ऑयल बेस्ड इंजेक्शन था। तो हमने पहली बार उस ऑयल की विस्कोसिटी कम करके उसको 7 डेज पे लेके आए और अभी एक्वस प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन बनाते हैं, तो वो 7 सेकंड पेन करता है। तो हम इंजेक्शन हो या ओरल हो, कुछ भी चीज हो, उसके अंदर स्पेशलाइज करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हमने आई ड्रॉप के अंदर, क्योंकि वो स्टाइल ड्रॉप होता है, हम 100+ आई ड्रॉप बनाते हैं। हमने पहली बार जो सस्पेंशन होते थे आई ड्रॉप में लगते थे काफी, तो जैसे लगेगा आप बंद करते तो मेजर पोर्शन बाहर निकल जाता था, तो हमने सस्पेंशन को सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे बनाए हुए आई ड्रॉप आंख पे कम लगते हैं। उसके अलावा उसके अंदर जो भी वर्ल्ड में आई ड्रॉप अवेलेबल होते हैं, हम उसको सबसे पहले उनके कॉम्बिनेशन, उनको बीकेसी प्रिजर्वेटिव फ्री करना है, बीकेसी फ्री करना है, और मोस्ट होती है हमने ही सबसे ज्यादा इंडिया में किए हैं। तो हमारा फोकस ऐसे रहता है कि जहां पेशेंट कंप्लाइंस बेहतर कर सके। हमने लॉन्ग बैक जब कंपनी शुरू की थी लिक्विड प्लांट अपना, तब अजिथ्रोमाइसिन का टेस्ट पास करके, तब उससे पहले जो अजिथ्रोमाइसिन बिकता था वो बच्चों को वॉमिटिंग कर देता था, तो उसकी टेस्ट पास की। हमने फिश ऑयल को जो बच्चों के लिए यूज होता है, जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, तो उसका ऑर्डर भी और टेस्ट पास भी किया, और 1+ और 2+ एज के बच्चों के लिए किया। हमने 3 टैबलेट को कैप्सूल में पहली बार इंडिया में हमने डाला था। अभी हम बाय टैबलेट फर्स्ट टाइम वर्ल्ड इंडिया में हमने की थी। तो ऐसे नंबर ऑफ आइटम हम अभी एक और आइटम देखिए हमने जो लास्ट ईयर लॉन्च हुई इंडिया में, हम डीसी अप्रूवल भी बैग भी किया, उसके अंदर हमने उस टैबलेट के अंदर हमने उससे पहले वो आइटम विरासिन मोटी का कब से बिकता था, उसको ऑरल डिस्पर्सिबल टैबलेट में कन्वर्ट किया और इंडिया के अंदर हमने सबसे पहली बार किया। तो हमारा प्रोजेक्ट बिजनेस के अंदर 210 आइटम हमारी जर्नी के अंदर हमने फर्स्ट टाइम वर्ड बनाए। एल्मिथाइल फॉर्मेट में हमने किए थे, पार्टिसिल फॉस्फेट हमने किए थे, पैमाब्रोम हमने किए थे, लैक्टिटोल हमने किए थे, उनके कॉम्बिनेशन तो किए किए, लेकिन हम उन आइटमों को लेके भी नंबर ऑफ एपीआई को इंडिया में पहली बार लेके आए। और हमारे को स्ट्रेटेजी का पार्ट रहता है, जो भी आइटम जैसे ही ऑफ पेटेंट होती है तो उस आइटम को इंडिया के अंदर हम स्टेबिलिटी वेबिलिटी करके सब तैयार रखते हैं, तो जिस दिन ऑफ पेटेंट होती है तो एज अर्ली एज पॉसिबल बहुत सारे पार्टनर्स को डिलीवर कर देते हैं। तो इसके उनको फायदा क्या होता है, हमारे जो पार्टनर्स हैं, जो मार्केटिंग कंपनी है, जो हमारे पार्टनर है, यदि वो इंडिविजुअल आइटम पे किसी आइटम पे डीसी अप्रूवल लेके आते हैं, उसके अप्रूवल लेके आते हैं, तो उसके अंदर एक कॉस्ट खर्च होती है। से एग्जांपल 100 रुपए खर्च होती है, करोड़ रुपए खर्च होती है वैसे, तो वो 100 रुपए जो खर्च होते हैं वो उनके उस ब्रांड पे आ जाते हैं। लेकिन यदि वो हमसे लेते हैं तो वो 100 रुपए हमारे भी खर्च होते हैं, लेकिन हम वो 20 लोगों को देते हैं, 10 से कॉस्ट रिकवर करते हैं, और 10 से के लिए हमारे R&D का प्रॉफिट होता है, प्लस हम उन सबके लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन भी करते हैं। तो उनके लिए फायदा है कि वो एक ही ईयर में पहले मान 10 आइटम लॉन्च कर सकते थे, तो अब वो 100 आइटम भी लॉन्च कर सकते हैं, जितनी उनको चाहिए उतनी आइटम लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट बहुत कम है। और company is planning for CDMO expansion for 2 plants. When company expect to start it? तो इंजेक्टेबल वाला प्लांट अगले कुछ महीने में ही स्टार्ट होने वाला है, वो रेडी है लगभग। लेकिन आज इंडियन फार्मा की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो जो जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं तो तभी उस आइटम को लेना चाहते हैं जब उसकी स्टेबिलिटी, वैलिडेशन और सब कंप्लीट हो जाए। प्लांट रेडी है, उसका लाइसेंस भी आ गया है, लेकिन इसको कमर्शलाइज करने में जो टाइम लगता है, रेगुलेटर डिफरेंटली बिहेव करता है, उसी टाइम के प्रोसेस में इंजेक्टेबल के लिए। उसके अलावा 2 प्लांट हमारा बद्दी में, जो उसमें से एक बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी हमारे पास कैपेसिटी के अंदर भी अभी भी हमारे पास कैपेसिटी भी बाकी है, लेकिन हम उसे अपने आप को इस हिसाब से तैयार करते हैं कि इंडिया में कोई भी फ्यूचर ग्रोथ हो या कोई भी चैलेंज हो, हम उसको एड्रेस कर सकें। उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ, जब कोविड के अंदर एक आइटम हम भी बनाते हैं, आज भी बनाते हैं, तो सबने खाई, क्योंकि ब्रांड कोड करना अलाउड नहीं है, तो 2.5 करोड़ टैबलेट बिकती थी इंडिया में सिर्फ, और हमने सेम मंथ के अंदर 32 करोड़ गोलियां डिलीवर करनी शुरू की, जितने भी लोग हैं सबने खाई होगी सेम मंथ में। There are wide fluctuation in your financial parameters, like that EBI has gone down in FY24, प्राइस के बारे में बोल रहे हैं ना, and PAT margin is only 0.7%. Your ROE and ROCE also came down.
What is the reason for this? So if you have looked at and you kindly looked at the document, so उसको दो तरीके से हम देखते हैं. एक हमने डॉक्यूमेंट में EBITDA PAT दिया है और एक adjusted EBITDA और PAT दिया है. Now the reason that you are seeing this negative is actually not the true reflection. When what happened is that when we got into an investment agreement with Quadria, which is a standard agreement, उसमें जब उनको exit देते हैं तो exits are either through IPO or